Hey young physics learner, welcome back to my class. This is Bhavna physics class and I was explaining you electromagnetic spectrum, these 5 topics. Out of these 5 I have completed these 4 topics here: Maxwell equation, displacement current, origination of EM wave and properties of electromagnetic wave. Overall I have covered these topics in 3 videos and you can go through with that videos and then only come to the last one, that is electromagnetic spectrum. As I told earlier that in my last lecture of this chapter, I will explain you about electromagnetic spectrum and we will solve some numericals. Okay, so I will guide you that how to solve the numericals, how to understand the numericals based on electromagnetic waves. So here I am with this last lecture, electromagnetic spectrum. Okay, before this I want to share you one thing, that my purpose of making the video on YouTube is not to promote my channel as educational business here on YouTube. My only motive is to explain physics topics as much as possible. So already I have been doing job here in CBSE school. So the purpose here is only to aware the children, aware the students regarding the topics of physics based on class 11th and 12th, and those who are preparing for NEET and Z competition, they can also go through with these lectures and you can get the concept of these topics under physics subject. Okay, so that is why I don't upload the video on daily basis, on hourly basis. No, I don't upload it because here there is no mean of uploading the daily video, because I'm not doing business here, educational business I'm not doing here. So that means what, कि आपको मैं टाइम दे रही हूँ कि आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करो और ये टॉपिक समझो भी. You have sufficient time to understand whether it is class 12th, whether it is class 11th, whether you are preparing for NEET and Z competition. You have sufficient time. Just go in the depth of the concept and then just before 1 month of examination day or D-Day, you can speed up yourself based on your concept, but your concept must be clear. Okay, so that is only my whole sole purpose here on YouTube. So let's start the today's topic, that is electromagnetic spectrum. Before starting the topic, I want to tell you that what is spectrum. EM spectrum. So I want to tell you the meaning of spectrum. Okay, what is the meaning of spectrum? Actually, the spectrum is the sequential way of radiation. Okay, that is the sequential way of radiation. अब वो जो sequential way होता है, एक regular way जिसे हम कहते हैं, that regular arrangement of radiation is called spectrum. That is my own definition. Okay, it is not mentioned in any book, I don't think so. It is mentioned here on the basis of descriptive part. I have concise over to the definition of spectrum, that is the regular arrangement of radiation is called spectrum. So what is radiation? Actually, for us, if we are going to find the natural source of radiation, then the natural source of radiation for us, it is sun. There are so many stars, other stars and celestial bodies from where we can get radiations. So if we are considering about sun and here the earth, so there are so many electromagnetic radiations that are the radiation. We have studied that radiations are based on, that radiations are constructed with electric and magnetic waves. Here I have described this topic in origination of electromagnetic wave. You can go through that video. So here the radiations are coming from sun. ओके हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अभी आगे ओरिजिनेट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैंने आपको जैसे बताया था कि ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ओरिजिनेट कर सकते हैं, बट उसके लिए एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था. सो आई हैव एक्सप्लेन दैट थिंग कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट are the sources of origination of electromagnetic wave and how can we generate the electromagnetic spectrum. So that I have described. Now
सन, अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करेंगे तो नेचुरल सोर्स में सन है जो रेडिएशंस आ रहे हैं कहाँ पर, अर्थ पे, वी आर लिविंग ओवर द अर्थ, गॉट इट। नाउ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं, रेडिएशन होते हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव से बने हैं, तो इसको इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इस स्पेक्ट्रम में, इस रेडिएशन में हमें सिर्फ आइडेंटिफाई जो होता है, जो पहले आइडेंटिफाई था, दैट वाज ओनली द विजिबल पार्ट। वी न्यू दैट द वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंड दैट वाइट लाइट कैन बी splitted into the different colors and that is only the part of the radiation coming from the sun, but it is not that kind। जो सन से रेडिएशंस आ रहे हैं उसमें यूवी भी होता है, अल्ट्रावायलेट भी होता है और आईआर भी होता है और विजिबल भी होता है। ये स्पेक्ट्रम यहाँ सन के रेडिएशन में प्रेजेंट हैं, ओके, ये रेडिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब इन रेडिएशंस में क्या सीक्वेंस है, किस बेसिस पे हम इसे अरेंज करें, वो हमने एक स्पेक्ट्रम फॉर्म में यानी अरेंजमेंट फॉर्म में हमने इसको, इस पूरे रेडिएशंस को डिस्क्राइब किया है। और जब हमने स्पेक्ट्रम बनाया तो इससे पहले, यूवी से पहले के और आईआर के बाद वाले स्पेक्ट्रम भी हमें मिल गए, यानी हमें रेडिएशंस मिल गए, जो पता चलता है कि स्पेक्ट्रम इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 3 काइंड, इट इज़ ब्रॉड अप टू 6-7 काइंड्स ऑफ रेडिएशंस, ओके। सो नाउ कम टू अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जब आप किसी चीज़ का करते हो तो किसी बेसिस पे करते हो। जस्ट आई एम सेइंग यू वन थिंग, अगर आपसे कहा जाए कि अपनी बुक शेल्फ का अरेंजमेंट कर दो, व्हाट डू यू मीन बाय अरेंजमेंट? आप करोगे, पहले बिगर बुक लगाई, उसके बाद आपने स्मॉलर बुक लगाई, उसके बाद आपने नोट कॉपी एक साइड में रखी, दैट इज़ कॉल्ड द अरेंजमेंट। सो दिस अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो दैट electromagnetic spectrum is an arrangement. So this arrangement is on the basis of two things, physical quantity, basis of 2 physical quantities, ठीक है। One is nu, which is called frequency, and second is lambda, which is called wavelength। क्योंकि हमने ओरिजिनेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये एक वेव है, और वेव है अगर तो प्रोग्रेसिव वेव है, और इस प्रोग्रेसिव वेव में फ्रीक्वेंसी होती है और इस प्रोग्रेसिव वेव में वेवलेंथ होती है। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वेव इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी वो यूज़ होनी है। सो ये जो अरेंजमेंट है ये या तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हो सकता है या तो वेवलेंथ की बेसिस पर हो सकता है। सो दैट इज़ द पर्पज़ हियर। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट किया है, देखो आपने जो रेंज की वैल्यूज़ होती हैं उसको एज सच याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको लर्न मत करो, बट हाँ जो उसका सीक्वेंस होता है वो डेफिनेटली आपको लर्न होना चाहिए। Like the first spectrum starts from gamma ray, and we are ranging the spectrum from increasing order of wavelength. This is the range on the basis of increasing order of wavelength. Lambda is the wavelength here, and we will draw this spectrum on the basis of increasing order of wavelength। और आपको ये पता है कि v इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। दैट मीन्स अगर हम न्यू की वैल्यू निकालें तो v बाई लैम्डा आ जाती है, ओके। नाउ न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दैट मीन्स इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सारी वेव की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, c के इक्वल, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये c के इक्वल है तो वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज़ वाई वी नीड टू पुट either the increasing order of wavelength or the increasing order of frequency. So if we are talking about increasing order of wavelength, that means what? Decreasing order of frequency. So frequency का increasing order किधर हो जाएगा? In the left side. So this is the increasing order of frequency. This is frequency and this one is wavelength. Got my point? तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ होती है गामा रे की। गामा रे आप
को मैं गामा रे रिकॉल कराती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने बताया था प्रॉपर्टी की कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। और पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन थे पेयर्स जो जनरेट हो रहे थे और एनिहिलेट हो रहे थे, एंड दैट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइनली फॉर्म गामा फोटोन। तो वो गामा फोटोन क्या है? corresponding to gamma radiation. Photon is a particle, energy particle, which is also called energy packets, which forms the electromagnetic radiation. क्यों, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है दैट कैरीज एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ऑल दैट. सो वी रेड अबाउट इट एज वेल एज प्रेशर टू. रेडिएशन में स्लाइट प्रेशर 10⁻⁶ ऑर्डर का पैस्कल का प्रेशर होता है. ठीक है, जब आप अपना हैंड सनशाइन में रखो तो आपको वो जो फोर्स की फीलिंग है वो फीलिंग आती है. कभी करके देखना. कंटिन्यूएशन में अपना हैंड आप सन लाइट के आगे रखो विद इन डार्क सनशाइन, इन नॉट इन डार्क सनशाइन, इन हैवी सनशाइन, तो उस केस में आपको प्रेशर फील होगा. ये नहीं है कि आपका हाथ पीछे चला जाएगा. प्रेशर का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ को पुश कर देगा. दैट प्रेशर इज़ ऑफ 10⁻⁻⁶ पैस्कल विच इज़ वेरी लीस्ट वैल्यू. गॉट माई पॉइंट. तो अभी तो फिलहाल गामा रे पे हम आ गए थे. गामा रे, इसके बाद आती है एक्स रे. एक्स रे को रॉन्जन रे भी कहते हैं, और रॉन्जन ने डिस्क्राइब की थी, इसीलिए इसका नेम रॉन्जन रे पड़ा है. इसके बारे में आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे. तो एक्स रे इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स. तो ये जो अरेंजमेंट है, ऐसा सीक्वेंशियल अरेंजमेंट सन से जब लाइट आ रही होती है उसमें नहीं होता है, बट ये जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है ये मैन मेड है. मीन्स ये हम एक एरे बना रहे हैं. मैंने आपको जैसे पहले डेफिनेशन बता दी है दैट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द रेडिएशन इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम. और अरेंजमेंट वो होता है जो हम एक सीक्वेंस में या एक किसी पर्टिकुलर टर्म के बेसिस पे सीक्वेंस अरेंज कर रहे होते हैं, उसको हम अरेंजमेंट कहते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बुक शेल्फ का एग्जांपल बताया. उसके बाद आता है दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन, यूवी रेज. ठीक है, साथ ही साथ मैं क्वालिटी बताती जा रही हूँ. ये जो इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो एक्सरे की वेवलेंथ रेंज होती है 0.1 to 1 एंगस्ट्रॉम होती है. और आप ये मान करके चलिए कि ये जो रेडिएशंस होते हैं इनकी लिमिट को, ये लिमिट्स ओवरलैप कर रही होती हैं. दैट मीन्स ये है कि 1 अगर हम कह रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज़ द वेवलेंथ रेंज मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्स रे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूवी रे 1 से आगे शुरू होगी, वो 1 से पहले भी शुरू हो सकती है. दैट मीन्स ओवरलैप कर रही होती हैं रेडिएशंस. एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है रेडिएशन की. ठीक है, तो इसकी लिमिट है 0.1 to 1 एंगस्ट्रॉम में. अभी मैं आपको बताऊं कि वेवलेंथ के फॉर्म में हम कितनी यूनिट्स रख सकते हैं. तो यूवी हो गया. देन विजिबल का आपको स्पेक्ट्रम रेंज डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक है. ऑप्टिक्स, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं, मैंने इस तरीके से लिखा है क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेंज बहुत कम होती है. यानी आपको जो पूरा सन विजिबल दिखाई दे रहा है, वाइट लाइट दिखाई दे रही है, वो तो बहुत स्मॉल पोर्शन है पूरे रेडिएशन का. सो दिस विजिबल स्पेक्ट्रम स्टार्ट्स फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम एंड एंड टूवर्ड्स 7800 एंगस्ट्रॉम. यू मस्ट लर्न दिस वैल्यू. इट मस्ट बी इन योर माइंड एट एवरी टाइम. ओके, सो दिस इज़ विजिबल स्पेक्ट्रम. इट्स वेवलेंथ इज स्टार्ट्स फ्रॉम 4000, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बाद ये जो नियर अबाउट गामा ये यूवी रेडिएशन जाएगा वो 1 एंगस्ट्रॉम से आगे शुरू होकर के आपका 4000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड जाएगा यूवी रेडिएशन. यानी यूवी रेडिएशन इज़ ए लार्ज पोर्शन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, आपको ये पता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैन के थ्रू, मशीनरी के थ्रू भी जनरेट हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ठीक है, इसको हम मेडिकल पर्पस में यूज़ करते हैं. फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ करते हैं. तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं दैट आर हार्मफुल एक्चुअली फॉर द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो दीज रे, दैट इज़ व्हाई वी यूज़ द सन प्रोटेक्टिंग क्रीम ओवर द स्किन. तो ये जो रेज़ होती हैं ये एक्चुअली जब जाती हैं स्किन के अंदर तो ये सेल्स को बर्न करती हैं, यानी स्किन सेल्स को बर्न करेंगी, पिगमेंटेशन को इंक्रीज़ करती हैं. और इसी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी स्किन को. कभी कभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर होता है स्किन पे
तो होगा क्या, जो इंटरेक्शन स्किन का इंटरेक्शन हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अगर हो रहा होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो पर्सन है, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, दैट कैन बी suffered from, that person can be suffered from skin cancer. Okay, so it is not good for, that ultraviolet radiation is not good for human skin. Got my point? और स्किन सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है, आपको पता ही है, तो स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. गॉट माई पॉइंट? दिस इज़ द वन थिंग. सेकेंड थिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो हमारी अर्थ पे एक ओजोन लेयर, ओजोन की लेयरिंग थी जो अब काफ़ी डिप्लीट हुई है ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू फ्रियॉन्स मीन्स क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर. हमारे रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन्स, यू बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द साइंटिफिक concept and scientific you can say it as the things that things or object that are based on the scientific knowledge. You must be aware about it so that you may use accordingly, like you know that you should save electricity and this is a part of the conservation of energy. Got my point? तो अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको अपने आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए. इसीलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको हम फ्रियॉन भी कहते हैं, दैट फ्रियॉन इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल द इनसाइड एटमॉस्फेयर, इनसाइड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर. और ये जो फ्रियॉन है, दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीट करेगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होगा that will not be reflected back from the earth atmosphere. It will come towards our surface, okay, and it will interact with the human skin and which is not good for human health. Got my point? तो हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए कि हमें अब ओजोन लेयर की डिप्लीशन को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, प्रोटेक्ट करना है कि ओजोन लेयर डिप्लीट ना करे. ठीक है, और उसके लिए ह्यूमन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल है. वन थिंग इज़ द पॉल्यूशन एंड सेकेंड थिंग इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो रोकना है. ओके, minimum to minimum use of the technology must be used only for the important purpose, not for your enjoyment, first thing. And second thing, that to save energy we must, and to save our earth we must use technology in a limit. Everything must be in the limit. तो मेरा आज का पर्पज़ ये जो मैं ये बता रही हूँ स्पेक्ट्रम के बारे में, ये भी है कि आप साइंस को एप्लीकेबल फॉर्म में किस तरीके से देख पा रहे हो. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. गॉट माई पॉइंट? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हार्मफुल है और इसकी प्रोटेक्शन नेचुरली ओजोन लेयर करती है विच इज़ गोइंग टू बी डिप्लीट फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन दैट आई टोल्ड अर्लियर. तो उसको हमें सेव करना है. Got my point? Visible spectrum is very useful for human being, for earth, that we are getting the sunlight, the white part of the sunlight that is used for our vision. Okay, हम objects देख पा रहे हैं, so that is the visible part. और इसके बारे में हम और भी फिनोमेना पढ़ेंगे अभी आगे ऑप्टिक्स में. Next one, after the visible part, the next part is IR, infrared radiation. इट इज़ वेरी यूज़फुल. जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, या इसको हम रेज भी कह सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ यूज़फुल इन द सेंस दैट इट कैरीज हीट. जो हीटिंग पोर्शन होता है सनलाइट का, दैट इज़ ड्यू टू द इंफ्रारेड रेडिएशन. विजिबल पार्ट में कोई बहुत हीटिंग इफेक्ट नहीं है. अगर आप इसकी एनर्जी निकालना चाहो इस वेवलेंथ की कोरस्पॉन्डेंस में, तो उसका भी फॉर्मूला है 12375 डिवाइडेड बाई लैम्डा, यू विल गेट द एनर्जी. सो एनर्जी अगर आप देखोगे तो IR रेडिएशन की जो एनर्जी आती है हीटिंग इफेक्ट में चली जाती है, हीट रेंज में चली जाती है. तो IR रेडिएशन इज़ यूज़फुल फॉर हीटिंग इफेक्ट एंड इट इज़ यूज़फुल इन ओवर द अर्थ सरफेस. IR रेडिएशन इज़ यूज्ड बाय snake are blind and they use IR radiations, they sense IR radiation. That is why they can identify a person by their body heat. Means what? कि IR रेडिएशन इज़ बिकॉज ऑफ द सेंसिंग, हीट सेंसिंग इफेक्ट. इसका यूज़ कहाँ हो रहा है? जो थर्मो कैमरा होते हैं, थर्मो पावर कैमरा,
इनमें यूज़ होता है IR रेडिएशन का, और ये थर्मो पावर कैमरा यूज़ होते हैं सैटेलाइट्स में। हर जगह विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं है, हर जगह लाइट नहीं है, तो वहाँ पर जो IR रेडिएशंस के थ्रू हमें सिग्नल्स को क्लिक करना होता है, कैच करना होता है, और इसी के लिए स्पेसिफिक इंफ्रारेड कैमराज आते हैं। वो कैमराज पिक्चर क्लिक करके बॉडी हीट के अकॉर्डिंग्स में पिक्चर क्लिक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू विच वी हैव टेकन द पिक. Okay, so IR radiation is used by the human being in higher technology for the purpose of astronaut, for the purpose of space में भी हर जगह लाइट प्रेजेंट नहीं है, विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं है, तो वहाँ पर IR रेडिएशन यूज़ होता है फॉर कैमरा पर्पस एंड फॉर डिफरेंट डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? सो that is why we can say that IR radiation is very useful. Now come to the next one. After this it will come as the microwave. Micro, again I will explain what is the purpose of this one. Micro is related to 10 to the power minus 6 angstrom. So माइक्रोवेव्स जो होती हैं, आपके घर में माइक्रोवेव रखा होता है, माइक्रोवेव कह लो या माइक्रो रे कह लो, तो माइक्रोवेव जिनके घर में प्रेजेंट है उनको पता है कि माइक्रोवेव का पर्पस क्या होता है. इट कुक्ड द आइटम, इट हीट अप द आइटम. Okay, so microwave are the rays that can provide the heating effect. It will not heat the utensils that are present inside the microwave. It will only heat the that item, the food item which is present inside the utensils, and the item can be, the food item can be cooked either or it can be heat up. ओके, तो माइक्रोवेव क्या कर रही होती हैं दैट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द माइक्रोवेव दैट कैन मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फूड आइटम. ओके, सो इफ द फ्रीक्वेंसीज आर मैच देन देयर is a resonance phenomena, and because of the resonance frequency phenomena, the high frequency is generated. That high frequency is useful for the purpose of cooking the food item or for the purpose of heating the food item. Clear? So that is the microwave. जो microwave oven होता है उसमें यूज़ हो रही होती हैं. इसके अलावा भी माइक्रोवेव कई जगह पे यूज़ होती हैं. आफ्टर that we come to FM, frequency modulation. F means frequency, M means modulation. इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं नहीं लिख पाऊँगी. So frequency modulation होती हैं वेव्स, और टेलीविज़न वेव्स हो जाती हैं जिससे आपका टेलीविज़न चल रहा होता है. जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ की आपको टेलीविज़न की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो FM और टेलीविज़न वेव में आ जाती है. इसके बाद आती है आपकी ये सारा, ये जो आपका माइक्रोवेव के बाद का पोर्शन है जितना, ये सारा कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये इतनी हाई वेवलेंथ की रेंज हो जाती हैं कि ये हाई वेवलेंथ की रेंज ईजिली रिफ्रैक्शन फिनोमेना, पोलराइजेशन फिनोमेना, डिफ्रैक्शन फिनोमेना देती है. जैसा मैंने अभी आपको यह प्रॉपर्टीज़ में डिस्क्राइब किया था, तो ये फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ हो जाती हैं. और आपको पता ही है कि आप FM रेडियो सुनते होगे, आप टेलीविज़न देखते होगे, तो आपको पता है कि ये कम्युनिकेशन ही है. दैट्स द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. FM, देन शॉर्ट रेडियो वेव, इसमें AM वेव भी आ जाती हैं. अब AM वेव क्या होती है? A means amplitude, amplitude modulation wave. तो amplitude modulation waves is of somewhat high wavelength. Afterward, the long radio wave. The last wave is long radio wave. Okay? तो ये आपका स्पेक्ट्रम होता है पूरा. जो सीक्वेंस है वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए. रेंज के लिए कोई ऐसा मैटर नहीं करता, इतना आपकी रेंज बहुत रिक्वायर्ड है आपको लर्न करना, एक्सेप्ट विजिबल पार्ट की पता होनी चाहिए आपको. लेकिन सीक्वेंस, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट यू मस्ट नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो, FM, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव. तो ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम रेंज इस सीक्वेंस में चल रहे होते हैं. और ये किस सीक्वेंस में है? दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर इस साइड में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है, जबकि इसके ऑपोजिट जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है और वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही है. सो दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आई डिस्क्राइब द डिफरेंट properties of different kind of radiations. So I hope this point is clear to you.
If you have any confusion, you can ask your query in the comment box. And afterward, I just want to share you one thing regarding the वैल्यूज़ जो आपको जनरली कई बार कंफ्यूज करती हैं न्यूमेरिकल के टाइम पर, वो वैल्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करती हूँ तो वेवलेंथ में मीटर होता है। अगर आप स्टैंडर्ड पे आते हो तो मीटर, ठीक है, होता है ना। मीटर के ऊपर अगर ऊपर की रेंज में जाएंगे यानी हायर रेंज में जाएंगे तो डेका मीटर होता है, दिस इज़ डेका मीटर। नीचे आएंगे तो डेसी मीटर होता है। डीसी डीसी लिखा है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है, दिस इज़ डेका और दिस इज़ डेसी, ठीक है, डेका और डेसी। तो ये डेका मीटर, डेसी मीटर। उसके ऊपर जाएंगे, यहाँ इसके ऊपर गए तो डेका 10 है तो 100 क्या होता है मीटर के ऊपर 100? टेल मी व्हाट इज 100? दैट इज हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, ये हेक्टो हो गया, ठीक है। उसके बाद किलोमीटर, ओके, किलोमीटर। दिस वन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर, यहाँ तक आ गए। अब ये रेंज क्या होती है 10 to the power 3, 10 to the power 2, 10, 1, 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3। ये माइनस की रेंज चल रही है, ऊपर प्लस की रेंज चलेगी। इसके ऊपर देखो किलोमीटर के बाद ये 10 to the power 4 को हम टेट्रामीटर कह सकते हैं, टेट्रा मीटर, टेट्रा, ओके, 10 to the power 4। पेंटामीटर आफ्टरवर्ड जो आगे इसका आता है वो है मेगामीटर। मेगा इज़ इम्पॉर्टेंट, मेगामीटर 10 to the power 6, मेगामीटर इज़ 10 to the power 6। फिर अब नीचे आ जाते हैं तो मिलीमीटर के बाद ये 10 to the power -3 के बाद आपका आता है -6 वाला टर्म जिसको हम कहते हैं माइक्रो। बहुत यूज़ होता है वेवलेंथ के टाइम पर। तो माइक्रोमीटर, मीटर हम यूज़ करें इसलिए साथ में मीटर लगना है, सो इट इज़ माइक्रोमीटर। इसको 10 to the power -9 पे ले आओ सीधे। नैनो जो मेजर टर्म्स है और भी होते हैं बीच में, आप देख लेना। -12 इज़ पीको। जो वेवलेंथ में जनरली ये टर्म्स यूज़ हो रहे होते हैं, ऊपर वाले और टर्म्स हैं जो वेवलेंथ में नहीं यूज़ होंगे क्योंकि वेवलेंथ इससे कम ही होती जाती है, ठीक है। पिकोमीटर 10 to the power -12, देन फर्मी, इट इज़ स्पेशली कॉल्ड फर्मी 10 to the power -15, ठीक है। और एक 10 to the power -18 भी होता है। फर्मी तक को तो जाना ही है, ये न्यूक्लियर लेवल पहुंच गया आपका 10 to the power -10। एक चीज़ तो मैं भूली गई -15, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे लाई नहीं, 10 to the power -10 भी होता है विच इज़ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10 होता है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10, पीको -12, नैनो -9, फर्मी -15। -15 इज़ न्यूक्लियर रेंज और -10 to the power -10 इज़ एटॉमिक रेंज। तो ये सारी टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके मॉडर्न फिजिक्स में ये सब यूज़ होने, ठीक है। तो ये तो पता ही होने चाहिए। ऊपर वाले टर्म में अगर हम देख लेते तो मेगा 10 to the power 6, ये टर्म जनरली पता होना चाहिए 10 to the power 6 का, क्योंकि एनर्जी जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ तो नीचे वाले ऑर्डर में आ रही होती है माइनस के फॉर्म में, लेकिन अगर एनर्जी की बात करते हैं तो मेगा जूल, मेगा वॉट, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ रही होती। पावर इज़ मेगा वॉट हियर। तो एनर्जी या पावर को अगर हम निकालेंगे रेडिएशन की तो वो आपकी मेगा के फॉर्म में जाएगी, इसलिए मेगा टर्म पता होना चाहिए, दैट इज़ 10 to the power 6, ओके। सो कम टू न्यूमेरिकल पोर्शन। जो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली मैं एनसीईआरटी से ले रही हूँ और आपकी स्क्रीन पे वो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो ओके, स्क्रीन पे आ गया न्यूमेरिकल। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, MHz लिखा हुआ है, देखो फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट न्यूमेरिकल 25 मेगाहर्ट्ज। कैपिटल M बना है तो मेगा है और इस तरीके का बना हुआ सिंबल हो तो माइक्रो है, ठीक है। तो मेगा कैपिटल M बना हुआ है, मेगा हर्ट्ज से, इज अलॉन्ग विद द x डायरेक्शन। इट इज़ मैंशनड दैट EM वेव इज प्रोपगेटिंग टूवर्ड्स x डायरेक्शन, ओके। इसको नोट कर लेना, जो मेन पॉइंट्स होते हैं न्यूमेरिकल के, यू विल नोट इट डाउन। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस एंड टाइम E इज इक्वल टू 6.3 J। E is electric field here, 6.3
जे, वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट दी हुई है इसकी। जे का मीनिंग क्या हो गया? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, ई इज इन वाई डायरेक्शन। पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज बी? बी की वैल्यू बतानी है। तो बी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब है आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो बी का जो डायरेक्शन होगा ये तो बट नोन हो गया कि एक्स और वाई के बाद बचा जेड डायरेक्शन। तो बी का डायरेक्शन हो गया जेड, और जिसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कि बी की वैल्यू निकालना। तो सिंपल है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ एक बार को डेफिनेटली देख लेना, इसी में से सब कुछ मिलेगा आपको। सब बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं जो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो उसको एक बार को देख करके फिर ये न्यूमेरिकल लगाना। सो द फॉर्मूला इज़ v इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड वाइज। v का मीनिंग हो गया यहाँ पर c इज़ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, so speed of light is known factor, it is not mentioned in the numerical, so b is equal to what? It is e by c. E value is given 6.3 and c is 3 into 10 to the power 8. So we will get the value of b as 2.1 10 to the power minus 8. Tesla is the unit because all the units are given in SI system. So we will get b in Tesla, that is the SI system unit, and afterward you will get the direction here by taking the value that the electromagnetic wave propagation is represented by pointing vector, dollar sign, and that should be equal to, this should be equal to E cross B. तो अगर आप E क्रॉस B के केवल आप वेक्टर्स में देखो E क्रॉस B होता है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंटिंग वेक्टर यानी कि जो एम वेव का डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है। ये एक्स डायरेक्शन यानी आई हो गया, प्लस आई है। तो प्लस आई आने के लिए आपको ई का डायरेक्शन ये दिया हुआ है प्लस जे, ये जे डायरेक्शन है, प्लस जे है। तो बी का कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए जिससे प्लस आई आए? तो आपने वेक्टर यूनिट वेक्टर पढ़ा था और मैंने उसमें आई जे के की फॉर्म बताई थी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो आई जे एंड के, तो आपके सारी वैल्यूज़ प्लस में आती है। दैट मीन्स आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के। ओके, जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू आई। अब यहाँ पे देखो क्या है, जे है, तो क्रॉस के बाद बी के लिए क्या आना चाहिए? के, देन इट विल कम टू आई ओनली। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने पे दैट मीन्स इट शुड बी के विथ प्लस साइन। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस आई आ जाता, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में तो प्लस एक्स डायरेक्शन मेंशन है। सो दैट इज़ वाई द आंसर हियर, दिस इज़ द आंसर हियर, दैट इज़ प्लस के। प्लस के का मीन्स क्या होता है? जेड डायरेक्शन। तो आपका बी का जेड डायरेक्शन आ गया। तो मीन्स क्या था, इसका ओवरऑल पर्पज समझो आप, that you have put the formula to find out the value of magnetic field, but to find out the direction, firstly roughly you have taken the direction as it is z direction. It may be plus z or minus z. So plus z and minus z you can assure it by this pointing vector which is the direction of electromagnetic wave. तो उससे के बेसिस पर, और आपने जो वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पर अगर आप पुट करके वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस के आ रहा है। प्लस के का मीनिंग होता है प्लस जेड, माइनस के का मतलब माइनस जेड डायरेक्शन। तो हियर द डायरेक्शन ऑफ बी इज़ प्लस जेड। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर इट? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वाई। चलो मुझे तो टाइम लगेगा, मैंने तो केबीसी बना लिया, बट रब करना रीडिंग एंड मैं कोई पहले से तो मैं रेडी करके तो आई नहीं हूँ ना, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है। ठीक है कि आपकी स्क्रीन पे आ गया, साथ ही साथ आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया। मेरे पास सिंपल बोर्ड है और उस सिंपल बोर्ड से ही आप समझो। ठीक है, तो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ इक्वल टू बी वाई इज़ इक्वल टू
इसका बी वाई का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। 2 10⁻⁻7 साइन 0.5 10⁻³ x प्लस 1.5 10⁻11t। ठीक है, टेस्ला, ये दिया हुआ है टेस्ला। ओके, सो इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन द फर्स्ट पार्ट व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फर्स्ट पार्ट वेवलेंथ बतानी है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अगेन मैंने बताया था जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम आएंगे। तो सिंपल एक जो इक्वेशन होती है वो ये थी कि अगर आप ई का डायरेक्शन लिख रहे हो कुछ भी, चलो मैं बी का पहले लिख देती हूँ, बी का डायरेक्शन लिख रहे हो तो बी का डायरेक्शन का मीनिंग है बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, एक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ एक्स लिखा था, ये वाई है, तो y के अलावा जो बाकी बचे वो यहाँ पर आ सकते थे, यानी या तो x आएगा या तो z आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में x मेंशन है तो इसलिए मैंने यहाँ पर kx और ओमेगा t लिख दिया है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर ये x है तो इसका मतलब हुआ, इस x का मीनिंग हुआ दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किसका, किसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? इलेक्ट्रिक वेव का कि मैग्नेटिक वेव का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? तीनों के लिए मैंने आपको बताया। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। रिमेंबर दिस, ये जो यहाँ y दिया हुआ है ये शो कर रहा है कि ये है प्रोपगेशन ऑफ मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव। तो बचा कौन सा डायरेक्शन? y हो गया, x हो गया, बचा कौन सा डायरेक्शन? z। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो E है उसका डायरेक्शन क्या होगा? Z, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में किया, पर प्लस Z है कि माइनस Z है वो पता नहीं, यानी हमने रफली ये निकाल लिया कि Z डायरेक्शन है। श्योर? ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलो हम लोग, ये मैंने इक्वेशन को आपको एलैबोरेट कर दिया यहाँ पर, बट फिर भी आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है? लेजीनेस नहीं, जितना लेजी बनोगे आपको प्रॉब्लम आएगी। डोंट बी लेजी, बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक, बी डिलीजेंट। ओके, तो यहाँ पर बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये टर्म आ गया। अब कंपेयर करो इक्वेशन को, तो दिस टर्म इज बी नॉट, दिस टर्म इज बी नॉट, ओके, दिस इज के, सो दिस होल टर्म इज के, दिस इज ओमेगा, सो दिस होल टर्म इज ओमेगा। ओके, क्लियर? अब क्या करना है? सिंपल है, आपसे पहले पार्ट में जो पूछा गया उसको पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट k is equal to 0.5 10⁻³ so you know that k is known as the propagation constant, you know that k is also called wave number, so if it is wave number then lambda should be equal to, because the formula for k is equal to 2 pi by lambda, that is the formula, so lambda is equal to what? 2 pi by k। ठीक है, आपने वैल्यू पुट की 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई के वैल्यू इज़ 0.5 10⁻³ अब इतने तो इंटेलिजेंट हो आप लोग कि इसको मैं ज़ीरो कर देती हूँ ऑलमोस्ट वैल्यू पुट करने के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने रफ एग्जाम्पशन ले लिया है, 3.14 को मैंने 3 कर दिया है, इससे ये कैंसिल हुआ, 5 6 30। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया लैम्डा का। दैट मीन्स दिस इज़ द वेवलेंथ। ये मीटर में ही आ रहा होगा आपका क्योंकि सारी एसआई यूनिट दी हुई है, टेस्ला दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये के आ गया, के से आपका लैम्डा आ गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा आपकी कितनी वैल्यू है? 1.5। कंपेयर करो इक्वेशन को, 10⁻11, ये ओमेगा और ये वो। ठीक है, इतनी वैल्यू दी हुई है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। फॉर्मूला माइंड में होगा तो सब कुछ हो जाएगा, और टाइम पीरियड आप निकाल लोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा आएगा। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इन्वर्स का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो विल पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1.5 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 3.14। मैंने 3 फिर से रख दिया। ठीक है, ये आ गया आपका 2,
1/4 का मतलब 0.25, 10⁻11 हर्ट्ज़ एसआई में दिया हुआ है तो हर्ट्ज़ आएगी। सो दिस वन इज़ द सेकेंड आंसर, यानी आपका फर्स्ट पार्ट के दोनों आंसर आ गए। व्हाट इज़ द वेवलेंथ एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। सिंपल था ना, लेकिन सिंपल तब लगेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी तो सॉल्यूशन देखने के बाद सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं कि आपको निकालनी है ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। द सेकेंड पार्ट, बी नॉट इज गिवन हियर, you will put the value of b naught as 2 10⁻⁻7. So what is the value of e naught? E naught is equal to b naught multiplied by c. कैसे? फॉर्मूला क्या था? as c is equal to e by b. ये बेसिक फॉर्मूला है। इससे आपने e naught की वैल्यू निकाल ली। तो e naught की वैल्यू आ गई, b naught is 2 10⁻⁻7 और c की वैल्यू 3 10⁻8. So we'll get the value 6 10⁻1, that is 60. ये तो E नॉट की वैल्यू आ गई। और बाकी के टर्म में क्या बचता है? जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ B है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ E क्या होगी? E इज इक्वल टू E नॉट साइन सेम kx प्लस ओमेगा टी। ये अंदर का टर्म तो सेम रहता है। और E क्या होगा? अलॉन्ग विद द z डायरेक्शन। आपने यहाँ पे लिया था, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका y डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x में है, तो एक लास्ट डायरेक्शन बचा z, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो दिस शुड बी ई जेड। सो यू विल राइट इट एज ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट विच इज़ 60 साइन द सेम टर्म। के वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक वेव मूव कर रही होती है उसी स्पीड से मैग्नेटिक वेव भी मूव कर रही है। जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वेव की है वही फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक वेव की है। तो जो साइन का ऑगमेंट टर्म होता है दैट विल नॉट बी चेंज्ड। सो हियर यू विल पुट द वैल्यू सेम एज बिफोर, के एक्स प्लस 1.5 10⁻11 टी। सो दैट इज द आंसर। ओके, क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो आई होप दीज 2 न्यूमेरिकल्स आर क्लियर। अब मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं और ये 2 न्यूमेरिकल में ही आपका टॉपिक बड़ा क्लियर होता है, किस तरीके से आपका ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ हो रही हैं या आप कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करोगे। बट अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है कहीं से भी, तो एक बार को आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं आपको ये टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी या न्यूमेरिकल कुछ और लेकर के आ जाऊँगी, ताकि आपको ये डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोपगेशन डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन एंड that magnetic wave direction and electric wave direction. So that must be clear to you what is going on here. Okay, so that is all for today. You can see this numerical. Next time I will come with the next lecture, next topic, a new topic, and with the new NCERT book. That is the second book now is going to be started, and that book I want to pick modern physics topic first. मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो सेकंड बुक है वो इंटर रिलेटेड टॉपिक नहीं है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट रखता है, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पिछला चैप्टर रिव्यू होना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि फर्स्ट बुक में था। फर्स्ट बुक में पिछला चैप्टर अगर नहीं पता है तो आपको नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर सकते, ये एक लिंक टू लिंक चैप्टर्स थे। बट सेकेंड बुक में ऐसा नहीं है, दे आर नॉट इंटरलिंक विद ईच अदर। ऑप्टिक्स 2 चैप्टर कैरी करता है, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट मॉडर्न फिजिक्स इज़ डिफरेंट यूनिट। देन आफ्टरवर्ड मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है एटम एंड न्यूक्लियाई, दैट इज़ डिफरेंट। दैन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। कम्युनिकेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो बहुत कम चैप्टर रह जाते हैं और बहुत अच्छे से कवर अप होंगे। मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। सो कीप इन टच।